recording mode, yes. So that is the southernmost tip also, as well as the place which is covered by 3 seas. 3 seas में कौन कौन से आते हैं? अरेबियन सी, then Bay of Bengal, then Indian Ocean. तो of course that is Indian Ocean, but ये क्वेश्चन में ऐसे ही आता है, that is situated at on 3 seas. Then comes the strait separating India and Sri Lanka. This is also very important question. So in between Sri Lanka and even India, you must have seen one boundary, एक पतली सी लाइन देखी होगी. That line is, that is one point is there where there is no land boundary shared in that. तो वो जो है, that is the Palk Strait, PALK Strait. इसमें स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच सेपरेट टू लैंड बाउंड्रीज. दो लैंड बाउंड्री को सेपरेट करता है, वो होता है स्ट्रेट. वो एक पानी का पैसेज होता है, पानी का एक रास्ता होता है, जिसपे इफ यू रिमेम्बर इन द रामायण के अंदर जो राम सेतु बनाया गया था, वानर सेना ने जो राम सेतु बनाया था, ये वो वही जगह है जहां पर वो सेतु बनाया गया था. एंड वो डोंट आस्क मी दैट स्टिल इट इज देयर, क्योंकि वो मायावी था सब कुछ, तो राइट नाउ इट इज नॉट देयर. तो ये जो जगह है इसको हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैप क्वेश्चन. देन इवन इट इज आस्क्ड दैट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो दैट ऑल्सो यू कैन सी दैट इज गिवन इन द मैप इटसेल्फ, कि इसमें यूनियन टेरिटरी जो हैं वो कौन कौन सी हैं. अच्छा, वन थिंग यू शुड नो अबाउट द यूनियन टेरिटरी. रिसेंटली दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, दीज आर मर्ज्ड. इसलिए हमारी जो पहले 9 यूनियन टेरिटरीज थी, दीज हैव बिकम 8 ओनली. सो हमारी पहले अर्लियर बिफोर दैट जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर जो बनी, दोनों अलग अलग लद्दाख एंड जो कश्मीर बनी है यूनियन टेरिटरीज, इससे पहले हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज थी? देयर वर 7 यूनियन टेरिटरीज. तो 7 यूनियन टेरिटरीज बन के 9 हो गई थी व्हेन लद्दाख एंड कश्मीर दैट वर मेड यूनियन टेरिटरीज. लेकिन अभी उसके बाद में क्या हो गया? दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, इन दोनों को कंबाइन कर दिया है. नाउ वी कैन से देयर आर only 8 union territory. So that also you can locate. Then comes second chapter, physical features. So ये physical features जो हमारी 6 physical features हैं, that is northern Himalayas. Yes, Prashant, anything? Prashant? Yes, okay, then all the physical features, that is northern Himalaya, then northern plain, then comes Indian desert, then peninsular plateau, coastal plain, that is western and eastern coastal plain, then are islands. So ये जो features हैं, these features also you should be able to locate, and this is very simple. कि इसमें in that map, if you see in the chapter 2, that is physical features, that is also very clearly it is given with the shading. ऊपर वाला that arc, जो Himalayan mountain की arc है, that also you can see. Then even हमारा northern plain है, Indian that great Indian desert है. Then even in the peninsular plateau, in that you can locate 2 more plateaus. Southernmost, that is Deccan plateau. In that central highland, जो central highland है, that is a part of peninsular plateau. उसमें 2 plateau हैं important. MP मध्य प्रदेश वाले एरिया में है मालवा प्लेटू, एंड इवन इन झारखंड वाला जो एरिया है, इन दैट छोटा नागपुर प्लेटू. दीज बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन कम्स अगेन अरावली रेंज. ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नीचे अरावली रेंज है, दैट यू कैन सी वेरी वेल. देन इवन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, दैट आर ऑल्सो शोन इन दैट. उसके बाद वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक, जो हाईएस्ट पीक है, दैट इज अनाई मुडी जो है, दैट यू कैन सी इन द
area that Kerala state में जाके देखोगे that then you can see that bottom part of our Western Ghat, वहाँ पर it is clearly written Anaimudi. Then the highest peak of Mahendragiri, that is you can see in Odisha state के अंदर very well you can see. Okay, let me take the peak of this. Well, then one of the student who will do that work, to whom I should give. Okay, Prashant, you can take that screenshot of our attendance. Right now it is shown 27. तो 27 स्टूडेंट्स की इसके एक जो स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना, because nowadays class attendance is also required because so many students are absent, so that also we need to see why they are absent. Okay, Prashant, is it clear? You can take the okay, you can take the screenshot and send to me. Then comes so many other things in this. It is given also in that Himalayan mountain के अंदर इसमें हम देख सकते हैं in Pakistan Suleiman range that is given, Hindu Kush, Pamir Note, and that is Kulnul mountain. ये जो बड़े बड़े इसमें mountain range के part दिखा रखे हैं, that also at least you should know that where these are located. Then just above Bangladesh, बांग्लादेश के ऊपर जो हमारा मेघालय स्टेट है, in that there are 3 hills, Garo, Khasi, Jaintia, very important location part, Garo, Khasi and Jaintia. These are the part of that is Meghalaya Karbi Anglong Plateau, that is the extension part of Deccan Plateau. These hills are also very very important. Then other than that, that in MP वाले एरिया में, मध्य प्रदेश वाले एरिया में you can see Vindhyas range and Satpura range. That is again part of our central highland. That also you can see. उसके बाद let me see the exercise part. Exercise में यही mountain hills range दे रखे हैं. Then उसके बाद peaks also you should just have a look. जो important peaks हैं, that is K2, Kanchenjunga, Nanga Parbat and Anaimudi. These are given in the book. Why? Because we are interested in Indian peaks only. So Anaimudi, Mahendragiri already we have discussed, Nanga Parbat, that also you can see, Kanchenjunga and K2. These are the important peaks of our Himalayan mountain. उसके अलावा इसमें प्लेटूज का दे रखा है, सेम थिंग दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. जो प्लेटूज के पार्ट हैं, मालवा प्लेटू दैट यू कैन सी इन मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेटू दैट यू कैन सी इन झारखंड एरिया, एंड देन डेक्कन प्लेटू दैट इज द सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री. जो नीचे का पार्ट है दैट इज डेक्कन प्लेटू. देन अगेन the great Indian desert, that already we have seen, Western Ghat and Eastern Ghat, and the water body already we have discussed, Bay of Bengal and Arabian Sea. So this is the part of second chapter, map activity. Okay, then our third chapter, that is theory part. You know that theory part that will not be there from this chapter, drainage system. जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें से हमारा थ्योरी पार्ट दैट विल नॉट बी देयर. लेकिन उसके अलावा जो इसमें मैप एक्टिविटीज हैं, ऑल द मेजर रिवर्स, जो इसमें मेजर रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स एंड सम इम्पोर्टेंट लेक्स आर देयर. तो इन दैट ऑल्सो दैट इज गिवन इन आवर मैप एक्टिविटी एंड ऑन पेज नंबर 19. पेज नंबर 19 में ये सारी रिवर्स दे रखी हैं. That will discuss only main or major river system.
जिसमें हिमालयन रिवर्स हैं एंड पेनिनसुलर रिवर्स हैं. तो इन दैट यू नो दैट इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. Indus, Ganga and Brahmaputra, these are the major river system constituent. Then इसमें क्या करना है, just at least you will practice once or twice, then it will be quite okay. क्योंकि ये थोड़ा सा तो ऊपर नीचे तो हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कि गंगा रिवर को तुम साउथ में दिखा दो. That should not happen. तो गंगा रिवर की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, what it is given in the map, that you can roughly you can locate. Then even Brahmaputra river कहाँ से originate होती है exactly, if you will see above Nepal, तिब्बत के अंदर, नेपाल के ऊपर का जो हिस्सा है वहां से ये पैरेलली जाके तिब्बत में, then it is going to अरुणाचल प्रदेश. ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक नामचा बरवा एक माउंटेन रेंज है, वहां से that is taking the sharp south turn towards south, and वो उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती हुई असम के अंदर से फिर वो बांग्लादेश से होती हुई वो जाती है, फिर गंगा रिवर में मिल जाती है. एंड दे आर फॉर्मिंग द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, सुंदरबन. ओके, फिर ये साउथ की जो रिवर्स हैं, साउथ की रिवर्स में यू विल सी दैट नर्मदा एंड तापी. नर्मदा एंड तापी जो रिवर हैं, these are mostly asked to locate in the map. क्योंकि ये जो रिवर्स हैं ये peculiar river हैं. These are west flowing rivers and these rivers are merging into Arabian Sea. ये दो रिवर स्पेशल रिवर हैं हमारी पेनिनसुलर रिवर्स, जो कि वेस्ट फ्लोइंग है और अरेबियन सी में मिलती हैं. अदरवाइज रेस्ट ऑल द मेजर रिवर्स दे आर मर्जिंग इन बे ऑफ बंगाल. लेट इट बी Ganga river, let it be Brahmaputra river, let it be Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. So these are the east flowing river, that is Mahanadi, that is Godavari, Krishna and Kaveri. So इनकी location that also you can have a practice, क्योंकि इसमें देखने से नहीं चलेगा. What you will do, you can use one map. जो blank map है उसमें mostly एक या दो बार प्रैक्टिस करके उसमें देखोगे, देन दैट यू विल गेट द परफेक्शन. क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आइडिया तुम्हें रहेगा, बट व्हाइल लोकेटिंग यू मे कमिट द मिस्टेक. जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये कोई इसमें परफेक्शन नहीं आने वाला है. इसलिए you should honestly you should go for that practice also. And after doing that practice you can send me that pic also as a proof. उसमें एक पिक भी भेज देना मुझे कि yes we have done that practice, क्योंकि ये either 5 or 6 marks ये बहुत important होंगे to increase your percentage also. So that part is very important. Don't just ignore कि कभी इधर उधर से देख लेंगे. You must practice for that. And I want that everyone should send me that pic of the practice map what you are going to do today or tomorrow. फिर हम ये तीनों इसमें चैप्टर्स में जो मैप है, अदर देन दैट यस वन सेगमेंट आई हैव जस्ट लेफ्ट. इसमें हमारी जो लेक्स हैं उन लेक्स को भी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं दैट आर आल्सो बीइंग आस्क्ड फ्रीक्वेंटली. इसमें जम्मू कश्मीर के अंदर वुलर लेक है, दैट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया. सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है दैट इज इन जम्मू कश्मीर, दैट यू कैन सी इन द टॉप, ऊपर देख सकते हो. दैट लोकेशन ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस. उसके बाद आता है हमारे राजस्थान के अंदर दैट इज द सोल्टी लेक. सोल्टी लेक जो है दैट इज सांबर लेक. उस सांबर लेक को भी देख सकते हो, दैट इज विजिबल इन द मैप very clearly. So that also you should locate and you should practice for that location. Then comes Odisha. Odisha के अंदर that is the largest salty water lake in India. Largest salty water lake in India, that is Chilika Lake. Chilika Lake that you can see in below Mahanadi River. Mahanadi के river के नीचे coastal area में you can see that Chilika Lake. Then उसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर एक कोलेरू लेक है. कोलेरू लेक जो आंध्र प्रदेश यू कैन सी इन द मैप. तो कोलेरू लेक वो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट.
देन कम्स तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर एक पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक जस्ट अबाउट चेन्नई, चेन्नई के पास में देख सकते हो पुलिकट लेक. So these are the quite important lakes that also you can see. Clear? And yes, Narmada and Tapi I was discussing. तो नर्मदा एंड तापी की जो मेन वो पहचान है कि नर्मदा रिवर इज लेंथियर देन तापी. ये दोनों ऊपर नीचे हैं, पैरेलली दे आर फ्लोइंग from the Rift Valley. These are both the rivers are flowing in the Rift Valley and merging into Arabian Sea by forming estuary. Whereas east flowing rivers, they are forming deltas, and this both the west flowing rivers, these are forming estuary and these are flowing in the Rift Valleys. Then इसकी जो लोकेशन है ये that you can see ऊपर वाली जो है, अगर वो लंबी रिवर है, if it is asked to even identify, ये आइडेंटिफाई करना भी पूछ सकते हैं कि ऑलरेडी वो उन्होंने एक मार्क दिया होगा, आइडेंटिफिकेशन करना है तुम्हें कि ये कौन सी रिवर है. अगर लंबी रिवर है दैट विल बी नर्मदा रिवर, और अगर छोटी रिवर है और थोड़ी सी नीचे है दैट विल बी तापी रिवर. ओके, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी नर्मदा है कौन सी तापी है. इफ इट इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई, अगर तुम्हें लोकेट करनी है दैट यू कैन लोकेट, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल भी जाता है लोकेशन में, बट आइडेंटिफिकेशन में यू शुड नॉट कमिट द मिस्टेक, एंड फॉर दैट यू शुड हैव द प्रैक्टिस. अगर प्रैक्टिस नहीं है तो तुम इसमें गलती करो, 100% गलती करोगे ही करोगे. देन व्हाट एल्स इन दिस. फिर हम इसके बाद जो है वो कल टुमारो यू विल गेट ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग में हम अपनी जो हिस्ट्री की मैप एक्टिविटीज हैं उनको डिस्कस करेंगे. देन यू कैन सी ऑल्सो हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर फ्रांस का जो मैप दिया है छोटा सा, उसके अंदर यू विल सी मैनी इंफॉर्मेशन एंड दैट वी विल डिस्कस इन टुमारोज रिकॉर्डिंग. उनके अंदर जो कुछ ऐसी जगह हैं विच वर अफेक्टेड बाय द ग्रेट यू कैन से एग्रीगेशन, उसमें जो रेवोल्यूशन हुआ था उससे अफेक्टेड थे. कुछ एरियाज ऐसे थे विच वर नॉट अफेक्टेड बाय दैट ग्रेट फियर जिसको बोलते थे बिकॉज ऑफ ग्रेट रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन. उसके बाद जो पोर्ट टाउन है, वहां पर 2 पोर्ट टाउन है जहां स्लेवरी सिस्टम होता था, ट्रेड स्लेव होता था. जो स्लेवरी का ट्रेड होता था वो पोर्ट टाउन थी नेंट्स एंड बोर्डेक्स एंड नेंट्स. जो 2 पोर्ट टाउन है उनकी लोकेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन पूछी जा सकती है. पेरिस के अंदर उसकी लोकेशन पूछी जा सकती है. तो देन टुमारो वी विल सी इन दैट फ्रांस मैप. उसके अलावा रशियन रेवोल्यूशन में देयर वर 2 ब्लॉक इन द वर्ल्ड वार 1 एंड 2. वर्ल्ड वार 1 और 2 के अंदर ये हम अगर इनके कंट्रीज की बात करें तो उन कंट्रीज की लोकेशन थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी होगी. लाइक फ्रांस, जर्मनी, देन रशिया, उसके बाद यूएसए, देन इवन इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन, देन ऑस्ट्रिया. ये कुछ कंट्रीज हैं दैट इफ यू विल सी द वर्ल्ड मैप, उसमें ये जो मेन जो वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 के ये जो पार्टिसिपेंट्स थे इनके बारे में भी पूछा जा सकता है. बट यू शुड नो दैट चांसेस आर क्वाइट लेस. मैक्सिमम क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन. उसमें जो फ्रांस का जो मैप है उसमें सम 8 to 10 इंफॉर्मेशंस आर देयर दैट आई विल शेयर इन द ग्रुप आल्सो इन द रिकॉर्डिंग, कि उनमें से कौन कौन से पॉइंट्स ज्यादातर पूछे जाते हैं that we will share. So you will not face much problem in map activity, and I hope that you will get maximum marks that may be of 5 or even 6 marks. Then anything you are facing problem other than that let me know. किसी की कोई problem? You are no doubt intelligent students, almost all are genius students, what I believe.
So you must have prepared well, but still, if anything you are having any doubt, that you can ask, and even don't leave any doubt, because this is half yearly, that will be considered in your final पेपर मार्क्स फॉर्मेट. जो तुम्हारा टोटल ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा, इन दैट दिस विल बी कंसिडर्ड. तो इसमें इनको ज्यादा इग्नोर मत करना, अच्छे से करना, एंड स्पेशली यू शुड फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप of course you have prepared because of your NTSC preparation, so I believe that you will score good marks in objective as well as in subjective also. And about the subjective and objective, you must be reading that chapter thoroughly, line to line. जब तक line to line नहीं पढ़ोगे, you know that 40 questions are there, 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं. तो ये इसमें से कहाँ से आएंगे, that you should know because you are the student of NTSC. So in that, if anything you want to ask, then you can raise the hand if anyone is having any problem. And don't worry, that timetable, date sheet and your syllabus I will share immediately after this class. So deleted syllabus आएगा. Okay. Yeah. So when the deleted chapters come. No, deleted chapters will not be included in half yearly. That is very much clear. So in that also, if you will read all the instructions that you will get, deleted chapters will not be reflected in the question paper. That is very much clear. Many times this was discussed because this was again emphasized that deleted chapters that should be taught in, especially in NTSC. वैसे तो उसमें भी बोला है, बाकी नॉर्मल जो क्लासेस नॉन एनटीएससी उसमें भी बोला है कि दैट एवरी चैप्टर शुड बी डिस्कस्ड. इसमें दैट इज फॉर योर बेनिफिट ओनली. कि सपोज स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट एनटीएससी, क्योंकि एनटीएससी में तो ये चैप्टर्स होंगे ही होंगे. अदरवाइज ऑल्सो फॉर नॉलेज सेक, तुम्हें नॉलेज तो होनी चाहिए कि भाई इसमें क्या क्या चैप्टर्स जो थे वो भले ही एग्जाम में नहीं आए, पर फॉर योर नॉलेज, कोई कंपटीशन की तैयारी करेगा, यूपीएससी के तैयारी के लिए कोई इसमें अगर पढ़ रहा है, तो देन फॉर देम दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन एनीथिंग एल्स? नो? so many times I told डाउट शुड बी देयर. बिना डाउट के हमें डाउट होने लग जाता है कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ही डाउट्स निकल के आएंगे. सो many times I told that yes, you are genius student, intelligent student, there is no doubt in that. So you are referring, nowadays you are having many sources, चाहे कोई गूगल बाबा हो या फिर बहुत सी और भी बहुत सी जो ऐप हैं, उनसे काफी कुछ हद तक डाउट्स क्लियर कर लेते हो. एंड above all you are having NCERT book. So NCERT के बाहर से कुछ नहीं आता है, that you must have observed by this time. अभी तक तुमने ये देख लिया होगा कि NCERT से बाहर कुछ नहीं आता है. अगर कुछ आता है तो कहीं ना कहीं ये तुमने मिस किया होगा उस लाइन को जो क्वेश्चन उसमें आ गया होगा. अदरवाइज मैंने बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि कोई इसमें क्वेश्चन आता है आउट ऑफ सिलेबस. बट स्टिल किसी को कोई अभी फिर भी डाउट होगा तो दे कैन आस्क मी एनी टाइम, नॉट इन द क्लास, देन लेटर ऑन ऑल्सो. ओके, यस. ओके सर. ये कि भागना चाह रहे हो? अच्छा, ये इसमें जो हमारा जो सिस्टम है, now you will get that change syllabus or change timetable also. Most of the time I think what I have heard that for the complete week you will be having your online classes. जो पहले 3 दिन होती थी, अभी मैनेजमेंट इज प्लानिंग फॉर दैट होल वीक डेली क्लासेस होंगी. और वो भी जैसे
3 दिन होती थी वैसे नो वीडियो विल बी सेंड इन दैट केस। मुझे भी ये लगता है कि क्लास शुड बी देयर। क्लासेस होती हैं तो फेस टू फेस और डाउट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और बच्चे कंफर्टेबल भी होते हैं। वीडियो में या फिर रिकॉर्डिंग में बच्चे कुछ देख पाते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। सो क्लास में थोड़ा सा एक्टिवनेस होती है बच्चों में, दैट आई कुड ऑब्जर्व। ओके देन यस, कुछ बच्चे जैसे नए आई थिंक अनुष्का शी इज कवरिंग very that she is covering. She was late admission, so now she could cover maximum part, so that is good thing. Other than that, Bharat also, I think you are also late admission. उसके अलावा और कोई है जो लेट एडमिशन है? एंड इफ एनी वन, आई थिंक प्रशांत ऑल्सो। यस प्रशांत। Sir, me also. हर्ष। Sir, I also. Yes, sir. Who is that I? अंकित। ओके अंकित राव। सो जो लेट एडमिशन है उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एंड इफ एनी हेल्प, इफ यू कैन आस्क फ्रॉम योर कलीग्स, हमारे दोस्तों से पूछो या फिर यू जस्ट कम टू मी, लाइक अनुष्का शी इज फ्रीक्वेंटली just contacting me for any sort of problem she is facing. So like that you can face. Now time is almost over. That can be कभी भी खत्म हो सकती है। Okay, so I will send that. Sir, rejoin करना है।